respect user rights. So you have to respect users' right. ऐसा नहीं है कि ये क्या करेगा. Till now we have no control, but when the act is in place, as a user we will have control. So that you have to start respecting user right as an organization. So maybe it is a really good session and you have covered most of the points. Only the key takeaway which I feel personally myself कि जैसे अपन बोलते हैं कि वेस्टर्न से इंडिया है और अपन उसके बाद वी आर मेकिंग अवर डीपीडीपी. They made GDPR first and then we are making a DPDP. When that is going to happen, when we are making our DPDP and then they are copying. Yes. So that might be one key takeaway for every one of us who are a tech evangelist here. तो आप ऑन रखो, फिर उसके लिए ऑन रखने के बाद यहाँ सेव बाय डिफॉल्ट सेव हो गया. नाउ आपको इंडिया में कुछ बेच रहे हो आप, तो आपको पेमेंट कलेक्ट तो करना है, तो कैसे करोगे? सो देयर आर टू ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया था, इंस्टामोजो और रेजर पे. दोनों ही प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं. तो ये आपका कॉल है कि आपको कैसे, आपके बिजनेस को क्या सूट होता है, अब कौन सा आपको मिनिमम मैक्सिमम डिस्काउंट देता है, क्योंकि सारा पेमेंट का के लिए है प्रोसेसिंग फीस का. तो आप बेस्ट कॉल आप ले सकते हो. दोनों के ही प्लगइन अवेलेबल है मार्केट में, सो उसका भी कोई टेंशन नहीं है. दोनों के प्लगइन है, डिफॉल्ट WooCommerce के साथ वर्क करते हैं. तो जो भी आपको बेस्ट हो तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो. The reason we are using third party payment gateway, because directly if you want to connect with a bank, then it's a lot of work. We'll have to write a custom code. We'll have to make sure. So again, this is a very practical use case that I wanted, everyday use case, because publishing 8, 10, 12 blog posts a week takes a toll on you and your team. They can't just keep copy pasting content every day in the editor, and that is not a great job to have. So before we get into this, I just wanted to बजट होगा उस हिसाब से. यू हैव टू वेरी थरो. जब आप कोई इवेंट कर रहे हो या जब आप कोई ये कर मतलब वेबसाइट कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी थरो इन दैट. देन क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. Quiet quitting. You don't know, just yes. Yes, that's a problem. Variable is open, is changing. So in order to have that, we also need to add the variable in the context. We can also आप ये पाएंगे कि आपका बाउंस रेट बहुत कम होगा. यूजर जो एक्शन करना चाहता है वो कर पाएगा, यूजर का एक्सपीरियंस बहुत बेटर होगा और आपका प्रोडक्ट सेल होगा. ऑब्वियसली दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. अब उस चक्कर में इसी साल में उन लोगों ने एक दूसरा कोर अपडेट मार्च में रोल आउट किया है. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दैट? एनीवन? ओके, सॉरी. The third one is invest in training. अगर स्टार्टअप्स की बात करें, अगर कोई इन फ्यूचर स्टार्ट करने वाला है या फिर जो भी बिजनेस
pan Maharashtra. In fact, supported a few startups which are based out of various states in our country. The focus is the priority is to ensure that there are more businesses and startups coming out of Nagpur. So if you are a Nagpur startup and looking for any kind of support in terms of entrepreneurship development, most welcome to walk in and have a talk with us. Wonderful, thank you so much. All the Nagpur startup guys, I think he's the man to catch after this discussion, right? So, well, coming back to Anuj. So Anuj, we spoke about Zenstar yesterday. It's a very interesting name. So can you tell us about what you do at Zenstar briefly? So Zenstar, I started in 2010, so it's been 14 years journey. Earlier we started with anything or everything in PHP that comes to our brand. Gradually we realized like e-commerce is something that helps us to grow well, and we started helping for the people, those who are looking for retail business to online or D2C startups. And since last 6 years, it's more focused on the like e-commerce journey, and as an agency we help for the making of the website, start from the strategy to the like design development. So it's more about like marketing as well. So we help them to scale. So the tagline is like we build profitable, sustainable e-commerce businesses. Wonderful, that's amazing. Yeah. So next is Himani. I think please let us know about what you do at Missive Digital. So. Okay, so Missive Digital is an organic marketing agency, and we serve mostly to the B2B SaaS and tech companies from early stage to the unicorns. And we focus only on 4 areas. One is content, anything and everything around content. Another is social media. In that we specialize in LinkedIn marketing. Third is SEO, of course. And fourth is marketing. And because we focus a lot on on content, Missive means communication. Okay, that's amazing. That's something that we learned. I learned new today, which I was not aware of. Thank you so much for that. Yeah, let's go to Murtaza. So Murtaza, let's talk about Biz Prospects and what you do there and what that company does basically. Biz Prospects is an 11-year-old KPO that I started in 2013. The company started as a WordPress development company and then pivoted into data as a service that we now sell to our global customers. So we have some unique data sets like global funding data, global jobs data that we sell to our customers who then use it for analytics, intent, sales, and so on and so forth. Okay. नमस्कार मित्रों, एक्चुअली आज हम लोग वर्ड कैम्प नागपुर में हैं और हम जानते हैं कि वर्ड कैम्प नागपुर पिछले कितने टाइम से उसके डिस्कशंस चल रहे थे। हमने भी एक एपिसोड किया था जो लीड ऑर्गेनाइज़र है निकिता सावरकर जी से, और हमने जानने की कोशिश की थी कि क्या इस पॉडकास्ट में होने वाला मीन्स क्या इस वर्ड कैम्प में हम जानने वाले हैं, क्या है, सारी डिटेल्स हमने थी। आज हम एक रैंडमली हम लोग जो ऑर्गेनाइजिंग टीम में हैं निखिल अपराजित, तो उनसे हम जानने वाले हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो कैसे सारे प्रिपरेशंस की और क्या इसके पीछे भागम भाग जो हम कहते हैं वो सब हुई, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार, जैसे कि आपने जाना मेरा नाम निखिल है और मैं पहली बार इस ऑर्गेनाइजिंग टीम का हिस्सा बना हूँ। मैं नागपुर में होने वाले ऐसे टेक इवेंट्स में हमेशा भाग लेते रहता हूँ और वर्ड कैम्प में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो वेब डेवलपमेंट के बारे में और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमारे फ्यूचर जनरेशंस को, फ्यूचर इंजीनियर्स को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तो इस मंच का हिस्सा बनने का चांस मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इसका पार्ट हूँ। सो जैसे आपने ये इस बार ये सपोज आपने अटेंड करा है एज ए ऑर्गेनाइजिंग टीम में, तो सबसे बड़ा की टेक अवे आपके लिए क्या है? की टेक अवे ये है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभिषेक भैया, निकिता दीदी ने जो काम किया है, बिकॉज इन्होंने इतने सालों से इसमें काम किया है, उन्होंने अपनी सिस्टम्स बहुत अच्छे से बना के रखी, इंग्लिश में जो कहते हैं ना रोबस्ट बना के रखी है, जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज़ का टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सारी चीज़ों का पहले से ही प्लानिंग हो चुका था, हम लोगों को बस अपना काम करना था और आप देख ही रहे इवेंट कितना अच्छा बना है।
राइट, आपने बहुत अच्छी बात की कि जैसे अगर प्रोसेस पहले से अच्छी हो तो पूरा ऑर्गेनाइज करने में या वॉलंटियरिंग करने में बहुत इजी रहता है। और जब आप लोगों से यहाँ पे मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत के हर एक शहरों से आए हैं, राज्यों से आए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसे आप जब लोगों से मिलते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस आपका? मेरे लिए किसी भी कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट होता है वो यही होता है कि मुझे अलग अलग लोगों से मिलने मिलता है, क्योंकि मैं अब खुद एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मैं एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। तो जब मैं अपने से सीनियर लोगों से मिलता हूँ या अपने से जूनियर लोगों से मिलता हूँ तो मुझे समझ आता है कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है काम में, वो क्या अलग कर रहे हैं, मैं क्या अलग कर सकता हूँ ताकि मैं अपने करियर में आगे बढ़ सकूँ। तो मेरे लिए हर कॉन्फ्रेंस का जो ये और स्पेशली वर्ड कैम्प नागपुर में तो पूरे भारत भर से लोग आते हैं, इनफैक्ट दुनिया से लोग आते हैं, तो वो ना एक बहुत अच्छा मंच हो जाता है आपको एक इंटरनेशनल नेटवर्क बनाने का, नए दोस्त बनाने का, नए कनेक्शंस बनाने का। तो आई थिंक वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। राइट, बहुत अच्छी बात उन्होंने डिटेल्स में सारे हमें बताए और पूरा ऑब्जर्वेशंस, उनका एक्सपीरियंस क्या है ये वर्ड कैम्प का और प्रिपरेशन उन्होंने कैसे की, ये सारी हमें डिटेल्स जो है वो हमें बताए। निखिल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद कहते हैं हम कि आपने हमें ये सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और हमारे जो ऑडियंस है, जब भी हम इसे पब्लिश करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, बोलेंगे हम मिस कर गए। श्योर श्योर श्योर, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग वर्ड कैम्प नागपुर में है और हम कुछ अटेंडेंट्स से कुछ पूछने वाले हैं, उनसे जानेंगे उनके एक्सपीरियंस। सबसे पहले पूछेंगे ये लोग कहाँ से है और इनका एक्सपीरियंस क्या है, हम पूछेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंकित जायसवाल है। मैं एक कंपनी रन करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, नाम बूजो मीडिया सर्विसेज नाम से कंपनी है। जी जी। और आपका नाम? मेरा नाम मुर्तज़ा अमीन है और मैं केपीओ चलाता हूँ। 2011 से वर्डप्रेस से जुड़े हुआ हूँ फुल टाइम। ऑलराइट, तो हमने नाम जाने, वो क्या करते हैं वो भी हमने जाना। अब उनसे पूछेंगे कि क्या उनके एक्सपीरियंसेस है अब तक के जो वर्ड कैम्प नागपुर में वो आए हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत बढ़िया। मैं अभी मतलब 5 वर्ड, मैं ऑर्गेनाइज़र भी रह चुका हूँ पहले वर्ड तो मेरा बायस्ड है ओपिनियन, तो मेरे को हर बार अच्छा ही लगेगा, बट ओवरऑल तो हमेशा हम लोग अच्छा करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि वर्ड कैम्प में जो इवेंट्स होते हैं तो उसमें पूरे भारत से लोग आते हैं और ये सब है, तो ये आप जब यहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा है? बहुत अच्छा। और इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको, तो पिछले वर्ड कैंप्स में तो हम लोग को मतलब लाइक ओवरसीज से भी काफ़ी लोग आए थे। मतलब इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि काफ़ी अलग टाइप के लोगों से नेटवर्क हो पाता है और काफ़ी लाइक माइंडेड लोगों के साथ नेटवर्क कर पाना और मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हो पा रहे हैं, मतलब और भी अच्छी बात है। और अब जब लोगों से मिले हैं, पूरे भारत से जो लोग आए हैं वर्ड कैम्प के लिए, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही पॉजिटिव रहा है। वर्डप्रेस एज अ कम्युनिटी जो इंडिया में बिल्ड हो गई है इतने टाइम में, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, जो नए लोग आना चाहते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ये जो कम्युनिटी बाहर से ट्रैवल करके आ रही है नागपुर में इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए, बहुत सारा यहाँ पे स्टूडेंट का जो क्राउड आया है उनको भी वर्डप्रेस के बारे में पता चल रहा है, तो होपफुली वो लोग भी फिर वर्डप्रेस में अपना करियर बनाएंगे और वेबसाइट्स बनाएंगे। राइट, तो हमने ये भी जाना कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या उनके ऑब्जर्वेशंस है। अगर मैं ये पूछना चाहूँ आपसे कि आपने अब तक जो भी अटेंड किया, जो लोगों से मिला, आपका की लर्निंग आपके लिए इस वर्ड कैम्प में क्या रहा अब तक का? मेरा फोकस टू बी ऑनेस्ट नेटवर्किंग का ही था जी। तो मैं इस बार तो काफ़ी नए लोग आए हुए हैं जो कि लास्ट टाइम नहीं आए थे। मैंने काफ़ी नए लोगों को मिल रहा हूँ, तो उनके साथ बात करके काफ़ी कुछ नया पता चल रहा है। उसमें पर्टिकुलरली हमारा डिस्कशन टॉपिक यूजुअली गुटनबर्ग और AI फीचर्स के ऊपर ज़्यादातर रहा और थीम्स के ऊपर भी रहा जनरल, और मतलब लाइक वर्डप्रेस और ग्रोथ के ऊपर ही रहा ओवरऑल, एंड बिजनेस नेटवर्किंग ओवरऑल, या बस वही था। तो जब आपने ये अटेंड किया है तो आपके लिए की लर्निंग अब तक का क्या रहा? मेरा यहाँ आने का एजेंडा और मोटो तो ये था कि मैं नागपुर की जो वर्डप्रेस कम्युनिटी है उनसे कॉन्टैक्ट्स बना सकूँ, लोगों से मिल सकूँ। एक की लर्निंग ये है कि थोड़ा सा वर्डप्रेस कम्युनिटी यहाँ का उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बॉम्बे का। पहले मैं बॉम्बे में था, तो एक कंपैरेटिव स्टडी अपन मन में करते हैं कि वहाँ का कैसा था, यहाँ का। तो यहाँ का अभी थोड़ा इवॉल्व हो रहा है। अभिषेक जो है वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो होपफुली आप जब 2 साल बाद आएंगे यहाँ पे
तो अब हम लोग 500 का क्राउड जमा कर पाएंगे, अच्छा जो वर्डप्रेस कम्युनिटी का है। भाई अपना रह गया डिस्कशन यूएस जाने का। राइट, नहीं बहुत अच्छी बात है। हमने जाना कि किस तरह से जो कम्युनिटीज़ है उसमें आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से जो वर्ड कैम्प्स है उसके थ्रू कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग बन रही है, लोग आ रहे हैं, अटेंडेंस नए आ रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स भी आए हैं और वर्किंग प्रोफेशनल्स है, कुछ नए हैं, तो सब लोग को बहुत एंथुसियाज्म है। बट ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच आपका, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, जब हम लोग देख रहे हैं कि वर्ड कैम्प नागपुर हो रहा है, उसमें हम लोग स्पॉन्सर के एरिया में आए हैं और रेनियम जो कंपनी है जो स्पॉन्सर है वर्ड कैम्प नागपुर के लिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कहाँ से वो आए हैं और उनका अब तक का वर्ड कैम्प जो नागपुर है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम रीता गहरवार है और हम नागपुर से ही है। नागपुर में हम लोग 2012 से काम कर रहे हैं और वर्ड कैंप ये हमारा सेकेंड वर्ड कैंप है और एवरी टाइम वी लाइक टू पार्टिसिपेट इन वर्ड कैंप और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आज तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ सबसे, अटेंडेज एंड स्पीकर्स, स्पॉन्सर्स सबके साथ, सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। राइट, और अगर हम बात करें कि जैसे आपने बताया कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, आपको रिस्पांस अच्छा मिला, तो हम बात करें कि इस वर्ड कैम्प में जो अब तक आपका एक्सपीरियंस हो उसमें सबसे की टेक अवे, जो की लर्निंग है या की टेक अवे आपके लिए, वो अब तक का क्या रहा आपके लिए? की लर्निंग इज़ लाइक द पीपल जहाँ से आ रहे हैं, कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, दूसरे कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट क्या होती है, नेटवर्किंग, दिस इज़ द मेन फैक्टर्स जो आज हमने देखने मिले हैं। तो हमने ये जाना कि उनके लिए की लर्निंग क्या है, कैसा रिस्पांस रहा, और मेरे ख्याल से ये आप भी सब टीम में ही है सर, तो आपका नाम क्या बता दीजिए। मेरा नाम करिश्मा है। आपका? मेरा नाम रिंकू है। मेरा नाम आकाश। तो ये देखा हम मिले हैं रेनियम कंपनी से, तो हमने उनके बारे में जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने हमारे साथ जो है वो आपके एक्सपीरियंसेस शेयर किए, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हम लोग वर्ड कैम्प नागपुर में स्पॉन्सर एरिया में जब आए हैं, तो अभी हम लोग एक स्पॉन्सर से मिल रहे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे जानेंगे कि क्या प्रोडक्ट है, क्या है और उनका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा है। जी बताइए। मेरा नाम आनंद नलिया है, मैं इंदौर से आया हूँ और मैं यहाँ ऑटोमेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑटोमेटिक के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें मेजर है wordpress.com, जेटपैक, टम्बलर, और यहाँ पर हम स्पेसिफिकली जेटपैक को प्रमोट कर रहे हैं। जेटपैक के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो अगर आप एक वर्डप्रेस साइट होस्ट कर रहे हैं तो आपके काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। यह नागपुर में मेरा ये पहला वर्ड कैंप है और अब तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ के काफ़ी तरह के लोग मिले, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, तो यहाँ पे सभी प्रकार की कम्युनिटी से मिलने का मौका मिला है और मैं कहूँगा कि काफ़ी एक सक्सेसफुल वर्ड कैंप रहा है। राइट, और अगर हम बात करें कि जैसे आप लोगों से मिले और आपका इंटरेक्शंस हुआ, तो सबसे बड़ा की टेक अवे आपके लिए अब तक का क्या रहा, अगर एक लाइन में बोलना हो तो? की टेक अवे यही रहा है कि अभी भी काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि हम क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है वर्डप्रेस के साथ, तो हमें एज अ कम्युनिटी ये कोशिश करना पड़ेगी कि हम लोगों को एजुकेट करें और बताएं कि क्या क्या पॉसिबल है। राइट, तो फ्रेंड्स जैसे हमने जाना कि जो जेटपैक का यहाँ पे वो लोग शोकेस कर रहे हैं, सारे क्या प्रोडक्ट्स आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या है। तो आज हमारे साथ जो इन्होंने शेयर किया, पूरे एक्सपीरियंस शेयर किया, किस तरह से उनका इंटरेक्शन था लोगों के साथ, जो अटेंडेंस आए थे। हम जानते हैं कि वर्ड कैम्प कहीं भी वर्ड कैम्प जैसे होता है, यहाँ पर भी हम जैसे देख रहे हैं वर्ड कैम्प नागपुर में, तो बहुत सारे शहरों से आए हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स भी है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, CEOs है और यहाँ पे जो है एजेंसी ओनर्स भी है। तो जब ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं तो हम बहुत कुछ हमें सीखने को, जानने को मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, जैसे कि हम जानते हैं कि वर्ड कैम्प नागपुर में हम जो है एक्सपीरियंसेस के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे राज्यों से आते हैं, बहुत सारे शहरों से आते हैं। उन्हीं में एक हम स्पीकर है हमारे साथ, जो वर्ड कैम्प नागपुर में स्पीकर है, तो उनसे जानते हैं उनके अनुभव क्या है, वो कहाँ से है, उनका नाम क्या है। नमस्कार, मेरा नाम मकरंद माने है, मैं कोल्हापुर से हूँ, महाराष्ट्र में कोल्हापुर है। मेरा टॉपिक था WPCLI, अनलीश द ऑटोमेशन।
जो WPCL है यह है वर्डप्रेस का कमांड लाइन है, जिसे यूज़ करके आप अपने जो भी दिल्ली के लाइव के वर्डप्रेस के ऑटोमेशंस है, प्लगइन अपडेट्स है, सर्वर मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर खुद का कुछ कस्टम CLI लिखना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपका बहुत सारा काम आसान हो जाता है। ये मेरा टॉपिक था एंड वर्कशॉप था, तो बहुत सारे लोग आए थे एंड कुछ लोगों के पास लैपटॉप थे, तो प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं हुआ। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग लैपटॉप लेके आए, लैपटॉप लेके बैठे एंड प्रैक्टिकल करें, बट फिर भी आफ्टर लंच भी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड दिया, लोग जगे हुए थे। दैट्स अ वन थिंग एंड भी हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की, जैसे कि बेसिक्स ऑफ WPCL है, उसके बाद उसको आप रेगुलर आपके ऑपरेशन में कैसे ऑटोमेट कर सकते हो। अगर वेबसाइट आपकी हैक होती है तो उस केस में आप चेक्स एंड वेरीफाई से कैसे उसको आप आसान कर सकते हो, प्रॉब्लम ढूंढ सकते हो। अगर कुछ अपग्रेड के वजह से प्रॉब्लम आया है तो डाउनग्रेड कैसे कर सकते हो कमांड से। ऐसे बहुत सारे हमने पॉइंट्स कवर किए और साथ में हमने ये भी बताया कि कैसे हम आप खुद का कस्टम कमांड लिख सकते हो एंड अगर आपको इंपोर्ट करने में 502 एरर आ रहा है टाइम आउट का, तो आप खुद की कमांड बना के आप वो भी ओवरकम कर सकते हो। चलो कि आपका अगर 2-3 दिन चलने वाला भी इंपोर्ट है तो आप CLI से कर सकते हो। और जब आप ऐसे इवेंट्स में जाते हो जो जहाँ जिस शहर में होते हैं, तो क्या आपके लिए मेन पर्पस होता है जब आप ऐसे वर्ड कैंप्स में जाते हैं? तो ये है कि अभी मैं 10 साल से ऊपर हूँ वर्डप्रेस कम्युनिटी में। शुरुआत में जब आया मैंने खुद बहुत सारी चीज़ें सीखी, कम्युनिटी से मुझे बहुत कुछ मिला है, तो आई वांट टू गिव बैक टू द कम्युनिटी इन मेनी वेज, बाय स्पीकिंग, बाय वॉलंटियरिंग। अभी मैं वर्ड कैंप कोल्हापुर भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तो नए नए लोग आए कम्युनिटी में, उनको भी सीखने का चांस मिले, वो भी ग्रो करे एंड एक दूसरे के शेयरिंग से हम लोग एक साथ ग्रो कर सकते हैं। दैट्स इट। राइट मकरंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे साथ सारे अनुभव शेयर किए वर्ड कैंप नागपुर के। धन्यवाद आपका। हेलो नमस्कार मित्रों, हम फिर से जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ड कैंप नागपुर में जो अटेंडीज़ है, स्पॉन्सर्स है या स्पीकर्स है, हम उनसे जानते हैं कि उनके एक्सपीरियंस क्या है। ऐसे में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं जो नागपुर से है। ये कहाँ से, हम उनसे पूछेंगे। तब आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनके एक्सपीरियंसेस अब तक के हैं। आप कहाँ से हैं? हेलो, आई एम ऋतिका जैन। मैं नागपुर से हूँ एंड आई एम राइट नाउ स्टडिंग एट GH रायसोनी कॉलेज सेकेंड ईयर, और ये मेरा पहला टाइम है एंड फॉर समवन दिस इज़ हिज फर्स्ट टाइम, दिस इज़ रियल, दीज सेशंस आर रियली आई ओपनिंग कि स्टार्टअप कैसे होगा या फिर कोडिंग एंड वर्डप्रेस के बारे में भी। इट वाज, दीज आर रियली ऑसम सेशंस। और जब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे अटेंड कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस अब तक का कैसा रहा? कैसा लगा आपको यहाँ पे? वंडरफुल स्पीकर्स एंड वंडरफुल सेशंस। चलिए दूसरे हम आगे पूछते हैं। आपका नाम? आई एम आर्या नंदुरकर जी। I am also from Nagpur and I am also from GHRC. I am a student and this is also my first time at WordCamps. I am new to WordPress, I am new to web development and all, but one thing that I realized being in WordCamps is that this is not just about WordPress and web development. There is something that is really worth it and there is a lot more than that. So we discussed Flutter, we discussed startups, so there is so much more. राइट, थैंक यू। आपका नाम बताइए। मेरा नाम वेनू है, मैं भी रायसोनी से ही हूँ और आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और मेरा भी फर्स्ट टाइम है वर्डप्रेस अटेंड करने का। और यहाँ पे आके बहुत कुछ नए नए चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, सिर्फ टेक्निकल नहीं, स्टार्टअप्स, बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता चल रहा है। और जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए ये सब समझना मतलब बहुत इजी थ्रू जो स्पीकर्स हैं वो बहुत इजीली समझा रहे हैं सब कुछ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। फिर UI/UX के जो भी एप्लीकेशंस है जो वेब वर्डप्रेस थ्रू डेवलप किए हैं वो मैंने देखे, मुझे अच्छे लगे, वो इजी टू यूज़ लगे, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। जी थैंक यू। और जब आप लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं वर्ड कैंप को और देख रहे सारे टॉपिक्स देख रहे हैं, तो आपके लिए अभी वर्ड कैंप में आगे क्या, मीन्स वर्डप्रेस में क्या आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, किस एरिया में जाना चाहते हैं? डेफिनेटली डेवलपमेंट में जाना है। उसके लिए भी जो सेशंस हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव थे हमारे, जैसे APIs के बारे में पता चला और उनको कैसे वर्क करना है, तो दिस इज़
really good experience. आपका भी I सेम would say the same. Development. And, yes, and I'm very much keen to know what lies in the field of web development now. राइट। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनका क्या मोटिवेशन है वर्डप्रेस के को लेके, और क्या वो देखना चाहते हैं कि वर्डप्रेस में आगे क्या है उनके लिए, किस तरह से टॉपिक्स है, और क्या वर्डप्रेस में स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से एक्सप्लोर करने के अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये सब बात सिर्फ नागपुर की नहीं है, बट यहाँ पे बात हो रही है वर्डप्रेस एक इकोसिस्टम की, एक कम्युनिटी की, किस तरह से लोग जो है यहाँ पे जुड़ते हैं, क्या आपको सीखने को मिलता है। ऐसे जब आप वर्डप्रेस इवेंट्स में या कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। आगे भी हम जुड़े रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।